اس میٹنگ میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دوں گی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوگا جن کو ذرا سا اندازہ ہو سکے تاکہ کہ یہ بیجنگ کی پروسیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے اصل میں کیا. اور اس جو 2 دن کی ہماری یہ کنسلٹیشن ہے، مشاورت ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے، ہم کہاں پہنچے. کیا ہم اپنی جو عورت ہے وہ سڑک پہ پتھر کھودتی ہمیں نظر آتی ہے، گھونگھٹ نکالے، یا ایک اور بھی شکل اس کی اب ہمیں نظر آتی ہے کہ نہیں ہے، اور اس طرح کی کتنی عورتیں ہیں اب، اور اس سے اس بندش سے نکل کے کتنی ہو گئی ہیں. تو تھوڑا سا موازنہ بھی کریں کہ ہم نے کوئی کامیابی ہمیں ہوئی ہے کہ نہیں، ہم کہاں سے کہاں پہنچے، یہ سفر میں کہاں تک لے کے آئے، اور ابھی ہمیں آگے سفر کتنا کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ہم نے یہ 2 دن کا استعمال کیا ہے. تو میں تھوڑا سا یہ شروع کروں گی کہ بیجنگ کی جب کانفرنس، 4تھی عورتوں کی بین الاقوامی کانفرنس تھی جو بیجنگ میں ہوئی تھی 1995 میں، لیکن وہ 4تھی کانفرنس کے پیچھے 20 سال کا ایک پروسیس تھی، ایک سلسلہ تھا جس کی کہ وہ تکمیل تھی وہ 4تھی کانفرنس. اور وہ تکمیل کانفرنس تک تھی، جو اس کے کمٹمنٹس تھے اور جو اس کے خواب تھے وہ ابھی تکمیل تک ہم نہیں پہنچے اس کے حوالے سے. تو یہ سن 75 میں پہلی عورتوں کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے 1972 میں 1972 میں یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ 1975 جو ہے وہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے. یہ ساری دنیا کی عورتوں کا دن کا سال وہ تعین کیا گیا تھا، اور اس میں مقصد اس کا یہ تھا کہ عورتوں کی جو برابری ہے مردوں اور عورتوں کی، اس کو پروموٹ کیا جائے، اور عورتوں کا بھرپور طریقے سے ترقی کے عمل میں حصہ ہونا، اس کے مواقع بنے، اور وہ پوری طرح سے ترقی کے جو پروسیس ہے اس میں وہ شامل ہو سکے، اور ان کا جو کنٹریبیوشن امن کے لیے ہے وہ بڑھ سکے، پوری طرح سے بھرپور طریقے سے ہو سکے. تو وہ جو ایک فریم ورک بنا تھا اس وقت، ایکوالٹی، ڈیولپمنٹ، جو پیس تھا، برابری، ترقی اور امن کا، وہ ابھی تک وہی فریم ورک ہے جو عورتوں کے جدوجہد کو آگے لے کے جاتا ہے، اور گلوبل ہے، وہ انٹرنیشنل ہے. اس 1975 میں پھر فرسٹ ویمنس کانفرنس میکسیکو میں ہوئی تھی، میکسیکو سٹی میں، جہاں پر 4000 عورتوں نے اس میں شمولیت کی تھی. اور یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ وہ تھی تو وہ انٹر گورنمنٹل کانفرنس، لیکن اس میں جگہ تھی کہ نان گورنمنٹ لوگ بھی شامل ہوں، لیکن 4000 اس وقت بہت بڑا فگر لگتا تھا. اور ورلڈ ایکشن پلان اس وقت بنا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب 10 سال ڈیکیڈ آف ویمن منائی جائے گی، تاکہ عورتوں کی جو مسائل ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، ان کے اوپر فوکس کیا جا سکے، اور سارے جو ملک ہیں وہ اس پہ کمٹمنٹ دیں کہ وہ عورتوں کی خوشحالی، ان کی ہر پروسیس میں شمولیت کو پورا کریں گے. بیگم بھٹو اس میں آگے تھی، اور مجھے یاد ہے کہ 1975 میں جو انٹرنیشنل ویمنس ڈے تھا وہ پاکستان میں بہت بھرپور طریقے سے منایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا، آپ کو اور وہ جگہ جگہ گئی تھی، ہر شہر میں انہوں نے کوئی نہ کوئی جلسہ اور سیمینار، اور وہ سال تھا جہاں پر آپ نے عورتوں کے اوپر ایک فوکس پاکستان میں بھی دیکھا، اور اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ یقیناً بیگم بھٹو کے ہاتھ میں تھی. پھر اس کے بعد سیکنڈ ویمنس کانفرنس ہوئی 1980 میں، جو کہ 5 سال کے بعد ریویو کرنے کے لیے کہ جو 75 میں جو وعدے ہوئے تھے وہ کہاں تک پہنچے. وہ کوپن ہیگن میں ہوئی. وہاں پر فوکس یہی تھا کہ حقوق عورتوں کے جو ہے برابری کے حقوق ہونے چاہیے، ان کی جو اپرچونٹیز ہیں نا، مواقع انہیں اور ملنے چاہیے، تاکہ وہ پوری طرح سے ترقی کے عمل کا حصہ بن سکے. اور وہ صرف بینیفیشری نہیں ہو، وہ ان کو چیریٹی نہیں ہے، ان کا حصہ ان کا حق کے طور پہ ہونا چاہیے، اور وہ کنٹریبیوٹ کریں ڈیولپمنٹ میں بھی اور حصے داری میں بھی. اور وہاں پر 7000 عورتوں نے شمولیت کی، اور ایک پروگرام آف ایکشن بنا. پھر جو زیادہ لینڈ مارک کانفرنس تھی وہ 1985 کی تھی، جو کہ نیروبی میں ہوئی تھی. اور یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں، میجر ایشور،
जो उस कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, और गुप्ता भी थी और बहुत सारे लोग थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो एनजीओ, सिविल सोसाइटी की तरफ से या फिर दूसरे लोगों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी भरपूर शमूलियत हुई थी। 16,000 औरतों ने उसमें शामिल की थी और उसके बारे में जर्नलिस्ट की मुझे याद है कि आज उन्होंने सबने लिखा भी था और काफ़ी इसकी मुल्क में इसकी सुनवाई हुई थी कि वहाँ जाते, वहाँ पर फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज वहाँ अडॉप्ट हुई ये फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन। और ये भी तय हुआ कि 5-5 साल के बाद हमें एक असेसमेंट की भी ज़रूरत है। सिर्फ एक डिक्लेरेशन करके बैठने से काफ़ी नहीं, हमें देखना भी चाहिए कि ये अकाउंटेबिलिटी भी रहे कि हो भी रहा है कुछ के नहीं। और ये औरतों की दिहाई का ख़त्म हो रही थी उस वक्त 1985 में, और उसमें जो चीज़ रिव्यू की गई, मुआवजा किया गया कि कितने गेन्स हुए थे, कितना लोग औरतों के हालात में बेहतरी हुई थी, कितने उनके रास्ते में क्या क्या चीज़ हायल होती है और क्या उनके कामयाबियाँ दिखती थी। और वहाँ पर जो चीज़ उसमें से निकली वो ये कि औरतों को इस बात का एहसास हुआ कि हम कहीं भी हों इस दुनिया में, हमारी जो मसाइल हैं वो बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो औरतों की एक जो आइडेंटिटी एज वुमेन बैनुल-अक़वामी सतह पे, आप मुल्क में आपकी जो भी है मसाइल उसके हवाले से तो आप हो सकते हैं, लेकिन जब ये पता चला कि हम अकेले नहीं हैं, वो बहुत बड़ा एक एहसास था कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, हमारी तरह और बहुत सी औरतें हैं और हम मिलकर क्या कुछ करने का एक अज़्म भी कर सकते हैं, कुछ कर बदल भी सकते हैं। और फिर उसके बाद 10 साल के बाद हमारी 1995 की फोर्थ वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बीजिंग में हुई, जिसमें तकरीबन 50,000 औरतों ने शिरकत की। ये बेहद औरतें और मर्द भी थे उसमें, और इस नौयत की मेरे ख्याल से उसके बाद कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, ना चाइल्ड राइट्स की हुई है, ना उसकी एनवायरनमेंट की हुई है, ना और इस नौयत की इसमें 50,000, यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन और मर्द ऐसे बैठे जो कि इसमें शामिल थे। और उसकी जो वहाँ पर जो एक एटमॉस्फेयर था, वो पता नहीं कैसे उसको कहें कि क्या एक जज्बा, एक जोश, औरतें आई हुई थी, गांव की औरतें भी थी, आर्टिस्ट भी थी, बच्चों को लेके आई हुई थी जो अकेली नहीं आ सकती थी, नानियाँ साथ में आई थी कि नवासों और नवासियों को हम देखेंगे तुम शामिल हो। तो उसका जो एक उसमें जोश और बलबला जो वहाँ था, वो मतलब किस तरह उसको कैप्चर करें इतना आसान नहीं है। और वहाँ पर ये फ्रेमवर्क वही रहा, इक्वालिटी, डेवलपमेंट होती है, बराबरी मर्द और औरत की, तरक्की जैसे औरतें डिफाइन करती हैं तरक्की को, उस तरह की तरक्की में औरतों की शमूलियत भरपूर तरीके से, और अमन, और वहाँ पर जो चीज़ हाईलाइट हुई कि एजेंडा बने औरतों की एम्पावरमेंट का। हम एम्पावरमेंट के लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, आप देखेंगे कि हर कॉन्फ्रेंस के साथ कंसेप्चुअल भी एक तब्दीली आती जाती है कि औरतें बराबर भी, लेकिन उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो, उनमें अपने ऊपर एक फैसला साजी की वो ताकत हो। और इसके बाद वहाँ पर जो कमिटमेंट हुए, उसमें हुकूमतों ने भी कमिटमेंट किया कि जो यहाँ पर लोगों ने तय किया है, बेसिक प्लेटफॉर्म पर एक्शन बना है, उसको फॉलो अप हम करेंगे, अपने अपने मुल्कों में नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाए। तो एक सिस्टमैटिकली हुकूमतों पे भी जोर पड़ रहा था कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अब वो कितना करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर जोर, उनसे कमिटमेंट किए, और उन कमिटमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के हवाले से हैं कि हमने दूसरे कमिटमेंट जो कि अभी तक हम उन पर साइन नहीं कर रहे थे, वो भी हमने किए, क्योंकि इसी ज़माने में हमारा साइन हुआ और रिजर्वेशन जो भी थी, लेकिन मतलब कहाँ रिजेक्शन हो रही थी वो कहाँ पर। तो वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको और बताएंगे। और ये भी तय हुआ कि 5 साल के रिव्यू जारी रहेंगे। बीजिंग के 5 साल का जो रिव्यू पाकिस्तान में बहुत एक्सटेंसिव और बहुत उम्दा रिव्यू हुआ था,
जो बीजिंग की शमूलियत के लिए जो यहाँ तैयारियाँ हुई थी उनके ऊपर मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि सलमा यहाँ बैठी हैं, उन्हीं की लीडरशिप में वो सब कुछ हुआ था, तो वो उसके ऊपर वो ज़्यादा रोशनी डालेंगी। और उसमें उन्होंने किस तरह से हुकूमत की तरफ से उन्होंने किस तरह से दरवाजे खोले और हम सबको जो सिविल सोसाइटी में लोग थे, एक्टिविस्ट थे, उनको इसमें शामिल करके और उस पूरे अमल में हिस्सा बनाया। बीजिंग के 5 साल के बाद 2000 में जो रिव्यू हुआ था बहुत सिस्टमेटिक हुआ था पाकिस्तान में। वहाँ पर पूरे मुल्क में, यहाँ पर आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया होगा, पूरे मुल्क में प्रोविंशियल कंसल्टेशंस हुई, नेशनल कंसल्टेशंस हुई, रिपोर्ट्स बनी, NGO रिपोर्ट, शैडो रिपोर्ट बनी, और उसके साथ साथ हमने डिमांड्स और रिकमेंडेशन मुआवजा करके और उसमें सिविल सोसाइटी की का हिस्सा बहुत ही शमूलियत। 2010 5 का तो ये बहुत अच्छा हुआ था। 2005 में B+10 था, 10 साल का जो था वो सिस्टमैटिकली नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली वो इतना सिस्टमैटिक नहीं हुआ था। लेकिन एक जो बात ये विमेंस कॉन्फ्रेंस के साथ हमें ध्यान करनी चाहिए कि हम सब जो थे वो एक ग्लोबल बैनुल अक़वामी ख़वातीन औरतों की तहरीक से मुंसलिक हो गए, और आप ये देखेंगे कि मुल्क में और इंटरनेशनली अगर बहुत बड़े इसके जलसे या मीटिंग नहीं भी हुई थी, ग्लोबल लेवल पे औरतों ने जो जिस तरह का रिव्यू किया और डायरेक्शन दिखाए, वो अब हमें नजर आ रहा है कि कितना सही उन्होंने निशान दे दी। ग्लोबल विमेंस मूवमेंट ने कहा कि अब हमें देखने की जरूरत है कि ये जो बीजिंग के 10-12 जो क्रिटिकल एरियाज है, बीजिंग के 12 क्रिटिकल एरियाज आइडेंटिफाई हुए थे, वो क्या काफ़ी हैं? हालात जिस तेजी से बदले हैं इस दुनिया के, उसमें हमें और क्या सोच करनी चाहिए। और वहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रेटजी जो सामने लेके आई ख़वातीन, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो हमारे मुल्कों से निकल के मुल्क से बाहर चले गए, ग्लोबलाइजेशन आ गया, हमारे यहाँ एक न्यू लिबरलिज्म आ गई है जिसमें कि एक नई शक्ल है इंपीरियलिज्म की। वो हमारे यहाँ अब दुनिया में फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म आ गए हैं जो कि औरतों की तरक्की के रास्ते में हाइल हैं, और मिलिटरिज्म बहुत बढ़ गई है। और जो हमारा एक स्ट्रगल था एक पेट्रियार्की या प्रेसिडेंशियल निज़ाम के खिलाफ, वो और मजबूत होता जा रहा है। ये औरतों ने इसकी निशानदेही की और जो रियलिस्टिक सिचुएशन को, और उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स बताया कि इसके लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा ऑल्टरनेटिव ये है कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस होनी चाहिए। जब तक माशी और समाजी इंसाफ नहीं होगा तो औरतों के जो बेहतरी है वो मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सेक्युलर स्पेसेस की बहुत सख्त जरूरत है। हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें आप वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हो, जिसमें इक़दार हो, जिसमें किसी की का मजहब या किसी की अपनी जो बिलीफ है वो हायल नहीं आए या किसी के ऊपर मसलत नहीं की जाए। उन्होंने कहा अमन और जमहूरियत के बगैर हम आगे नहीं जाते, और औरतों की जो राइट्स है, इक्वालिटी है, सिर्फ औरतों की, हर सिटीजन की इक्वालिटी और राइट्स की बात है। ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बीजिंग में भी जो औरतें थी, खास तौर पे साउथ की जो तरक्की पजीर उन्होंने जब भी आइडेंटिफाई किया था कि हमारा जो इशू है वो गुर्बत है, हमारा इशू है फूड सिक्योरिटी है, हमारा इशू है ये ग्लोबलाइजेशन जो जिस तरह हो रही है, जिस नहज में जा रही है, वो हमारे लिए मुसीबत होगी। इंडिविजुअल राइट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये वाली राइट्स के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब बीजिंग के 10 साल होते जबकि औरतें बता रही हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे जो हुकूमतें हैं, जो हमारे लीडरशिप है, वो औरतों की आवाज़ को सुन नहीं रहा है। और मैं तो ये कहूँगी कि हमें अपनी लीडरशिप से, अपनी सियासतदानों से, अपनी गुफ्तगू से कहना चाहिए आप औरतों की आवाज़ सुने, क्योंकि वो हकीकत से अपनी आवाज़ है और उस आवाज़ में आपको जवाब मिलेंगे औरतों की बेहतरी, मुल्क की बेहतरी के लिए। तो ये अब हम
15 साल के बाद यहाँ बैठे हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये एक सिलसिला चला आ रहा है जो 75 से शुरू हुआ है, और उस सिलसिले में हम कहाँ पहुँचे हम उसकी एक मुहावजा करेंगे। यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि हमारा जो पाकिस्तान में भी जब हम ये रिव्यूज कर रहे हैं हर बार, ये हमारा रिव्यू सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, ये हिस्सा है रीजनल सब रीजनल और रीजनल रिव्यू। वहाँ पूरे एशिया पैसिफिक इलाके में एक प्लेटफॉर्म बना एशिया पैसिफिक वुमेन्स वॉच, जिसने अपने जिम्मे लिया मॉनिटर करना बीजिंग के कमिटमेंट्स में कहाँ तक पेशरफ हो रही है या नहीं हो रही है। एशिया पैसिफिक वुमेन्स वॉच की एक स्टीयरिंग कमेटी है, शिरकत जहाँ उस स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर भी है, और हमने जब 2005 में बीजिंग का रिव्यू किया था वो भी हमने उस फ्रेमवर्क में किया था ताकि हम कंपेयर कर सकें इस रीजन में कहाँ तक हमारी कामयाबियाँ हैं कि नहीं है, और क्या मुश्किलात हैं और कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो कि कॉमन है हमारे आपस में, जिसको हम लेके रीजनल मुश्किलात को लेके ग्लोबल लेवल पे जाएं। तो इस दफ़ा एशिया पे और फ्रेमवर्क उन्होंने सबने मिलकर तय किया था, तो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में उसी फ्रेमवर्क से रिव्यू हुआ था। अब जो एशिया पैसिफिक वुमेन्स वॉच की मीटिंग हुई है, शगुफ्ता हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम ये देखेंगे कि सिविल सोसाइटी ने क्या क्या अचीव किया है। हम इस दफ़ा हुकूमत का तो रिव्यू कर लेंगे अलग से, लेकिन हम ये चाहते हैं देखना कि सिविल सोसाइटी ने वो जो बीजिंग में आवाज़ उठाई थी, कमिटमेंट्स किए थे, उसकी कामयाबी के लिए क्या क्या कर सके। तो ये हमारा जो ये यहाँ पर है वो हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे इन 2 दिन में। और उसकी थीम निकली है इस दफ़ा की रिव्यू की, वो है वीविंग विजडम। ये 15 साल हो गए हैं, यहाँ बहुत कुछ जो हमने सीखा है वो हमें एक विजडम और हमारे पास नॉलेज है, उसको हम देखें। और कन्फ्रंटिंग क्राइसिस जो हैं अब के, उनको हम किस तरह से कन्फ्रंट करें, और फॉर्जिंग द फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल के लिए अब हमें क्या करना चाहिए इकट्ठा हो। तो ये हमारा थीमेटिक फ्रेमवर्क है। और जो मैं ख़त्म करते सिर्फ ये बात कहूँगी कि जो बात बहुत वाज़ेह हो गई है, जो बीजिंग के प्रोसेस ने हमें दी है, ख़ास तौर पे कि हमारी भी एक आवाज़ है, और हर आवाज़ की उतनी ही अहमियत है, ख्वाह वो गाँव की औरत है या शहर की है, पढ़ी लिखी है या नहीं लिखी है, सब औरतों की, हर औरत की एक आवाज़ है, और उस आवाज़ की बराबर की अहमियत है। हमें उन आवाज़ों को जमा करना है, इकट्ठा करना है, वही हमारी आवाज़ बन के आगे एक मौज बने। और फाइनली ये जो मूवमेंट है, जो ख़वातीन का मूवमेंट है, वो एक पुरअमन मूवमेंट है। सिविल सोसाइटी का भी मूवमेंट अगर हम पाकिस्तान में देखें, वो हमें दिखेगा कि पुरअमन मूवमेंट है। आप किसी भी जलसे में, हम सड़कों पर बहुत निकलते हैं, कैंपेन्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा हाथ है, जब कोई आवाज़ नहीं सुनेगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आप कभी भी आपने देखा कि हम 1983 से सड़कों पे निकल रहे हैं, कभी भी किसी औरत के हाथ में डंडा भी है या पत्थर है या कोई वायलेंस करते हैं या कोई शीशा तोड़ते हैं, इट्स पीसफुल। तो जो अमन की आवाज़ है वो भी औरतों की तरफ से उठती है, और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अमन चाहते हैं तो रास्ता भी पुरअमन होना पड़ेगा, और अगर हमें इंसाफ चाहिए है तो इंसाफ, उसका रास्ता भी इंसाफ क्या कहते हैं, इंसाफाना होना सॉरी तो मुनसिफाना होना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, और यही हमारा स्लोगन और मोटो होगा।